السلام علیکم، ماجد مقصود ہے دوستوں. آج ہم بات کریں گے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اسپیشلی انفلیشنز اور اس کا امپیکٹ ہمارے غریبوں پہ کیا ہوگا. بات کرنے سے پہلے میں دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہم اس پہ تھوڑی زیادہ ہماری آؤٹ ریچ ہو جائے. دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں کہ میں اس موضوع پہ بہت پہلے سے لکھ بھی رہا ہوں ریجنل نیوز پیپرز میں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں یہ جو ہم پاسٹ سے کیوں نہیں سیکھتے، کوئی لیسن لرننگ کیوں نہیں کرتے، اور یہ آخر ہم اس ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. اس پہ میں بہت لکھتا رہا ہوں اور میرا جو آنے والا جو آرٹیکل ہوگا وہ بھی شاید اسی پہ ہی ہوگا کہ ہم لوگ ترقی کیوں نہیں کرتے یا ہم ترقی کیوں نہیں کرنا چاہتے. اس کے بارے میں نیکسٹ میرا جو آرٹیکل ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ایک دو روز میں وہ بھی آ جائے گا. تو دوستوں، بات کرتے ہیں. دیکھیں، آج ہمارے پاس کوئی 15-16 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے، اور یہ جتنے بھی آج کے جو حالات ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ حالات ہمارے جو ایکسپیرینس جو ہم کرتے رہے ہیں اپنے حکومتوں کے ساتھ، اپنے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کو جس طرح ہم چلاتے رہے ہیں، اب اس کا یہ نتیجہ ہے. ہم نے کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا. وہ کسی نے اس نے کہا تھا، کسی نے شاید گاندھی نے کہا تھا یا کس نے کہا کہ اتنی میں دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے. تو وہ ہوتے رہے وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے، اسسنیٹ ہوتے رہے، جیلیں کاٹتے رہے، ان کو مارتے رہے اور ان کو اسسنیٹ اور ایگزیکیوٹ کرتے رہے. اب ہمارے پاس آپشنز بہت کم آ کے پہنچے. پارٹیز جو ہمارے پاس تھی وہ ایک پیپلز پارٹی جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا، اس کو بھی توڑتے گئے. کبھی پیٹرولک بنی، کبھی کچھ بنا، کبھی ان کے لیڈران کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، کبھی ان کو قتل کیا گیا، کبھی ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، کبھی ان کے لوگوں کو خریدا گیا، کبھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی. تو پاکستان میں جو ایک پارٹی تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کر کے سندھ تک محدود کر دیا. یقیناً اس میں جب پارٹی میں اتنا کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک اس میں تو آ جاتی ہے. اب ان کے اپنے بھی مسائل ضرور ہیں اس میں، آپ پیپلز پارٹی کو بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے، ان کے اپنے بھی بہت سارے فیلیئرس ہوں. میں بہرحال اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو پولیٹیکل ایشو ہو. پھر یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ یار یہ تو سندھ بیسٹ پارٹی ہے، ابھی کوئی اور پارٹی بناتے ہیں. پھر ایک پارٹی آ گئی ہمارے پاس، مسلط ہو گئی، وہ تھی یہ نواز شریف. اب نواز شریف IGI اور یہ سارا کچھ زبردستی انہوں نے ایک پارٹی بنائی، وہ پارٹی بھی ان کے گلے آ گئی. اب اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا، وہ آتی آنی جانی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں اتنی الیکشن ہوتی ہے، اتنے اخراجات ہوتے ہیں، ایک حکومت آ کے بیٹھتی ہے اور مشکل سے اپنی پالیسی دیتی ہے، وہ پالیسی ایگزیکیوٹ کرنے کی ابھی ابھی ٹائم آتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس کی کوئی کاس نہیں ہوگی. یہ آج ہم پاس دے رہے ہیں. جو آج آپ کے پاس مہنگائی جو تقریباً 40 تک پہنچی ہے نا، وہ آج کاس دے رہے ہیں. ملک کو ڈیریل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اپنے مقاصد کے لیے، پرسنل مقاصد کے لیے کوٹوں کو استعمال کرتے رہے، کوٹیں استعمال ہوتی رہی. اب تو یہ سوشل میڈیا اور 21st سینچری ہے. اب آپ پہلے تو ہمارے پاس ایک کوئی ادارہ ہوتا تھا جو جس کو ہم کہتے تھے یہ ہولی کا، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ یہ دنیا کا بہترین ادارہ ہے، نمبر 1 اور دس اور دیٹ، اور اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. لیکن ابھی آپ جا کر سوشل میڈیا کھولیں تو میمز بنی ہوئی ہیں بہت سارے. لوگ بتا رہے ہیں جو دنیا سے باہر ہیں، دنیا سے باہر تو نہیں ہے لیکن پاکستان سے باہر ہے، دنیا کے کافی ملکوں میں، وہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیسا ہوتا ہے اور کون کون یہ کرتا رہا ہے. یہ سب کچھ اب تو کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں رہا. جو ہولی کاؤ سے یہ ختم ہو گیا سلسلہ. اب ہو سکتا ہے لوگ پاکستان میں بات نہیں کر سکے کھل کے، لیکن باہر لوگ کر رہے ہیں. یہ سارا کا سارا جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنا اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارا نتیجہ ہے ان کاموں کا جو ہم 75 سال کرتے آ رہے ہیں. ہم نیریٹو بناتے ہیں، اس نیریٹو کو پروجیکٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ پہلے
भुट्टो को कहा गया कि ये एंटी स्टेट था, तो उसने बांग्लादेश तोड़ा। हालांकि आपको पता ही है बांग्लादेश किसने तोड़ा। अभी रिसेंटली भी आमिर नील ने किसी प्रोग्राम में जो एस एम जफर है उसकी किताब का रेफरेंस दिया कि अयूब साहब ने क्या कहा था, अयूब खान ने क्या कहा था कि मुझे बांग्लादेश से जान छुड़ा। तो वहां पे उनका जो फाउंडेशन वो तो बन चुकी थी। इससे पहले अगर आप 48 में चले जाए तो कायदे आजम ने जाकर इंग्लिश में कहा था, कहाँ पे, उधर ढाका यूनिवर्सिटी में, कि यू हैव टू एक्सेप्ट उर्दू लैंग्वेज, बंगाली इज नो मोर योर नेशनल लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है उसका भी एक इम्पैक्ट था। हालांकि उसको खुद को भी उर्दू में बात नहीं करनी आती, लेकिन वो अभी उर्दू के लिए उनको कह रहा था कि आपको उर्दू को एक्सेप्ट करना होगा। अब ये बड़े बड़े जो हैं, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, मैंने तो किताबों में पढ़ा है, पर बहरहाल ये भी एक तारीख का हिस्सा है। इसी तरह फिर इन्होंने पार्टियां बनाई, फिर नवाज शरीफ लेकर आए, फिर जावला कहा गया, ये मार्शल लगती रही, और ये सारा कुछ जावला के बाद नवाज शरीफ बीबी के बाद आए यकीनन। टाइमलाइन तो कुछ डिफरेंट है, मैं सिर्फ हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। तो मुल्क के साथ क्या होता, तजर्बे होते रहे। अब ऐसी पॉइंट आ गई है कि अब हमारे पास, और उसका जो हमें फायदा होता था वो ये होता था कि हमारे पास आजू बाजू में किसी नेबरिंग कंट्रीज में, स्पेशली अफगानिस्तान में कोई प्रॉक्सी होती थी, कोई वार चल रही होती थी, तो हम बड़े खुश थे कि क्योंकि उनकी हम सपोर्ट कर देते थे और हमें पैसे मिल जाते थे। पहले भी अफगानिस्तान में जब एक काफर आया तो हमने सपोर्ट की, हमारे पास डॉलर आ गए बहुत सारे। तो फिर दूसरा काफर आया तो हमने फिर जो है हम काफरों के साथ भी मिलके, जो पहले काफरों के खिलाफ हमने सपोर्ट किया, फिर काफरों के साथ मिलकर हमने जो है उनकी सपोर्ट की, और बहुत सारे पैसे आ गए। तो ये पैसे आते रहे। अभी तो मुल्क, पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस में, पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में। अब जब पूरी दुनिया रिसेशन में है तो आपको तो कोई भी घास नहीं डाल रहा, कोई भी घास नहीं डाल रहा। और अभी आईएमएफ जो है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। आईएमएफ इतने शराइत लगा रही कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो भी आपको करने पड़े, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भी आपको मानने, उसकी एक अलग इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन का हमारे मुल्क में। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि अब मुल्क जिस बंद गली में फंस चुका है, अब हमारे सारे जो इदारे हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि माल खत्म हो गया। तो सारे इदारे आपस में लड़ना शुरू हो गए। आप जुडिशरी को देख लें, विद इन जुडिशरी जो है वो जस्टिस एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बेंच को छोड़ के जा रहे हैं कि भाई हम विथड्रॉ करते हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। एक तो जस्टिस अख्तर बिनाले ने कहा कि मैं, उसने जो कोर्ट में बात की थी हमारे साथ, जस्टिस जो चीफ जस्टिस बदियाल साहब हमसे जो कह कर गए थे, रिटर्न में कुछ और लिख कर आए थे। इतना बड़ा इल्जाम उसने लगा दिया। चीफ जस्टिस, मेरे भाई, वो हमारा चीफ जस्टिस है। वो तो बाकी लोगों ने भी कुछ इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। तो अभी जो ये इलेक्शंस का जो फैसला आया, लोग इस पे हंस रहे हैं। भाई आपने 100 वोट लिया, तो उसके बाद एक फैसला तो क्लियर देना कि इतने दिनों में आप इलेक्शन करा दें। फिर भी आपने उसको डिविएट का एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम फ्रेम में, इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसको बढ़ा भी सकता है। तो अभी फिर दोबारा ये हंगामा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फैसला भी नहीं दिया और मुल्क को भी चोक करके रखा। तो अब से ये सारे के सारे जो इदारे हैं ये आपस में दस्तू गिरबान है। उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, सारे एक दूसरे के साथ मतलब है कि उनकी ऑब्जेक्शन एक दूसरे के ऊपर है। एक एक दूसरे को जिम्मेवार देता है, एक दूसरे को एक और को जो है वो रिस्पॉन्सिबल समझता है। तो एक दूसरे पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात देखें, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो, उनके पास दूसरे और कितने केस होंगे, लेकिन वो इमर्सिव पॉलिटिकल केसेस में, रोज पॉलिटिकल केस को ना कोई लगा होता है। बाकी केसेस लोगों के गए भाड़ में, वो पॉलिटिकल केसेस का फैसला करा। भाई आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें आप वो फैसले करें ना। तो पार्लियामेंट आपकी तकरीबन इनफेक्टिव हो चुकी है, उस पर कोई काम नहीं होता। हालांकि आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन फैसले सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। तो सारे जो इदारे वो तकरीबन डिसफंक्शनल होते जा रहे हैं। एक तो वो आपस में लड़ रहे हैं, वो दूसरा डिसफंक्शनल होते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर ऊपर की कहानियां। इदारों में पॉलिटिक्स और एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ जो चलता रहा, इनकी आपस में लड़ाया, दस्तों गिरेबान आपस में जो होते रहे, ये मैं आपको बता रहा था। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट जो कंट्री में पड़ रहा है,
जो इन्फ्लेशन आ रही है, जैसे मैंने कहा कि आज तकरीबन 15-16 रुपए का जो है वो हमारा डिवैल्यू हो चुका है रुपये, और तकरीबन 280। अब लोग कह रहे हैं कि शायद ये कोई 300 या 350 तक जाकर बात पहुंचेगी जब यहाँ तक। तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा, आप क्या समझते? इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान आएगा, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये जो 25-30 हजार रुपए कमाने वाले, 20 हजार कमाने वाले, और जो कुछ भी नहीं कमाते, वो कहाँ जाएंगे? डरे उस दिन से। ये इस मुल्क में आज मैं दोबारा ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई एनार्की कुछ इस तरह की थोड़ी सी मतलब है, वो कहते हैं ना स्पार्क करने की जरूरत है, और ऐसी आग लगेगी, ऐसी आग लगेगी, ये हुक्मरान भाग जाएंगे इधर से। ये अपने घरों में महफूज नहीं होंगे, जिनके पास ये अरबों लाखों रुपए इन्होंने पाइल करके, पैसे पाइल अप करके जो रखे हैं ना, ये नहीं बचने हैं। ये इनके महल नहीं बचने हैं, आप देखना। और इसका स्टार्ट पंजाब से होगा, ये भी आप देख लेना। ये होने वाला है, इसके बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरह के हालात है ना, उससे यही लगता है। तो मैं बार बार ये कहता चला रहा हूँ कि इनको चाहिए कि कुछ कोई सैन डिसीजन करें, कुछ आपस में मिलें और आपस में कुछ ऐसी कंसिडरेशन, कुछ ऐसे फैसले करें जिससे आवाम का कुछ फायदा हो। आप हमें ऐसे आईएमएफ की वो बातों पे टटका रहे हैं। अभी वो कह रहे थे कि आईएमएफ तो हमें पैसे देने वाला है, वो जाएगा और उसके बाद एक वर्चुअल हमारी कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद आईएमएफ के पैसे आ जाएंगे, ये स्टेटमेंट दी थी। लेकिन कुछ पता नहीं है कि आईएमएफ हमें कम पैसे दे रहा है, हमारा रुपये जो है वो डिवेल्यू होता जा रहा है, और आपको जो 20 मिलियन देने थे वो बढ़ जाएंगे। कितने देंगे मुझे नहीं पता, जो आपके कर्जा आपको जो देना है, अब वो 40 तक जाके पहुंचेंगे कि 40 से डबल नहीं हुए तब भी आपके तकरीबन 50-60% तो आपकी जो ये डिवेल्यूशन हुई है उसकी वजह से आप उनको इतने पैसे देंगे। क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास बिल्कुल 2 महीने के बाद आपके पास पेट्रोलियम के पैसे नहीं होंगे। ये थोड़े से कुछ 600 मिलियन अभी डॉलर्स मिले हैं चाइना के, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये आपके 2-3 महीने का एक खर्चा है, और उसके बाद आपके पास जो नेसेसरी आइटम्स है, स्पेशली दवाई नहीं होगी आपके पास, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वो नहीं होगी आपके पास, आपके पास जो आयल है वो नहीं होगा। ये देखना रोडों पे लोग किस तरह जलीलो ख्वार होते हैं, और बहुत बड़े हालात बुरे होने वाले हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये जो भी हालात हमने पैदा किए, ये हमने खुद ने किए ना। इसमें किसी की कंस्पायरेसी, जो लोग कहते रहे कि हमारे पास हमारे हम मुल्क के खिलाफ लोग कंस्पायरेसी करते रहे, दुनिया कंस्पायरेसी करते रहे, सबसे बड़े कंस्पायरेटर हम खुद हैं। हमने खुद अपने मुल्क को इस दर्ज पे पहुंचाया जहां पर अब आज ऐसी सूरत हाल है कि किसी के पास इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम बंद गली में हैं, और इस बंद गली का मुझे नहीं लगता कि हम बंद गली से निकल जाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट, जो सीवियर किस्म का इम्पैक्ट है, वो आने वाला है, और वो दिन अब दूर नहीं रहे।